Gujarat Jamnagar. Reliance refines 1.5 million barrels of crude oil every day. A vast coastal area which Ambani chose to become his own oil refineries. But at the same place, he invested $10.6 billion in green energies. But why? To align with government's net zero ambition by 2070. But Ambani is not alone in this game of influencing new energy sector. जब मिस्टर अंबानी ने अनाउंस किया दैट ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट $10 billion इन ग्रीन एनर्जी, हिंदुस्तान के दूसरे बड़े बिलियनियर ने अनाउंस किया दैट ही एंड हिज कंपनी अदानी ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग $20 billion टू इंडियाज गवर्नमेंट न्यू एनर्जी सेक्टर प्लान. बट what are the real ambitions behind these billionaires ideas? एक न्यूज़ आती है 14th जनवरी को कि रिलायंस अब 5.9 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने जा रहा है आने वाले 3 सालों में, जिसमें से 5 ट्रिलियन रुपीस विल गो स्ट्रेट अवे टू दी 100 गीगावाट पावर स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी का, प्लस डेवलपिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में. ये आने वाले 10 से 15 सालों में सेटअप का प्लान है. प्लस ऑलरेडी इतनी जल्दी है इस एम्बिशन को अचीव करने की इन बिलियनर्स को दैट दे हैव ऑलरेडी हैड अ वर्ड विद द लोकल गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड्स. Initiatives of decarbonization and creating green ecosystem emanates from the vision of Mr. Prime Minister Narendra Modi. अदानी नाम तो सुना होगा, और POSCO? If not, let me tell you what's cooking behind the bars in these two giants. Soon, Adani Group announced that they are going to build an eco-friendly integrated steel mill in the state, estimated cost being $5 billion. पर क्या ये गौर करने वाली बात नहीं है? क्योंकि उसके बाद ही हमारी साउथ कोरियन जायंट POSCO ने अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू एक्सपैंड एंड एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप विद अदानी ग्रुप्स. POSCO, द स्टील मेकिंग जायंट, and the purpose of expansion and expanding this relationship being green renewable energy sector in India. But what are the changes these things are going to bring to the residents of India? जब तक आपके मास्टर प्लान लोगों को रोजगारी ना दे, तब तक आप उस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसका नतीजा प्रॉमिस ऑफ 1 million jobs creation in the next decade alone by Reliance Industries. उसके बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि USA has started building the biggest crude oil reserve in Gulf of Mexico by 30% capacity. But why? Because we have only 41 years of crude oil reserves left. उसके बाद क्रूड ऑयल नहीं सोना होगा. ऑल्दो हमारी गाड़ियों से तो हमने क्रूड ऑयल एलिमिनेट करने का तरीका निकाल लिया है, बट स्टिल देयर आर आर डेली लाइफ प्रोडक्ट्स जिसमें से क्रूड ऑयल एलिमिनेट अभी तक नहीं हुआ है. वैसलीन का नाम तो सुना होगा. ट्रेडिशनल एंड ओल्ड पेट्रोकेमिकल ड्रिवन बिजनेसेस आर मेकिंग इनरोड्स टुवर्ड्स द न्यू एंड क्लीनर फील्ड इन द रिसेंट ईयर्स. But a report shows that with the investments in new renewable energies, these giants are expanding their capacity in coal and oil-based refineries. For example, Adani Group is going to increase the capacity of coal-generated electricity from 12 gigawatt to 24 gigawatt. वो भी in next upcoming 2 years. What does this mean? More electricity generation is equals to more coal mining. मतलब कि we are aiming to achieve bigger targets by digging the earth and finding the black diamond which is called the coal. समझ रहे हो? रिन्यूएबल एनर्जीज में इन्वेस्ट करने का पैसा कहाँ से आ रहा है? डीकार्बनाइज होने का प्रोसीजर, कार्बन एमिशन ज़्यादा करने के बाद कुछ वो उस पर वर्क करेंगे. सो दिस इज द डार्क ट्रुथ ऑफ बिलियनियर्स. But after these, we saw the brighter future. Now we are expecting and moving towards renewable energy and a sustainable ecosystem where we focus more and more on the cleaner side. Our world works on a rule called world order. पर यार खुद सोचो,
इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और इसमें से हम वर्ल्ड का 6.6 CO2 एमिशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट बेस भी है इन रेवा, अपने मध्य प्रदेश में। यार वो सब छोड़ो, एशिया का बिगेस्ट फॉरेस्ट प्लांटेशन भी हमारे पास ही है, झारखंड का सारंडा फॉरेस्ट। बट what are the plans of the government to overcome this global warming? They are planning to plant 10 billion more trees by 2030 so that they can stay ahead from this global warming and try to increase renewable energy source by 40%. We won't be able to overcome global warming without overcoming poverty. पर ये भी सही है, जितना हम पॉवर्टी से ऊपर जाएंगे उतना ही हम मटेरियलिस्टिक होंगे, उतना ही हम लग्जरी की तरफ मूव करेंगे, उतना ही ट्रैवल करेंगे एंड उतना ही CO2 एमिशन बढ़ेगा। राइट नाउ द पर पर्सन CO2 एमिशन इज 1.9 टन, बट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी जहाँ पर हमारी 1% पॉपुलेशन इज होल्डिंग द 40% वेल्थ ऑफ द कंट्री। सो हमारा उनसे उम्मीद करना गलत नहीं है। ये उम्मीद करना गलत नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें टू सेव द वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट। बट एज फॉर्मर नॉवेलिस्ट मिस्टर मारियो पूजो सेड दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं तुलसी बजाज साइन ऑफ करते हुए टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड टेलिंग यू दैट और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पर एंड हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग न्यूज़ यू नीड। थैंक यू, सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।